Yes. Good morning, students. Today we are going to see the next experiment, right? And so that we can able to go further, right? And as we have started, with different kinds of programs, and we are also studying the object-oriented features. Okay. So first of all, let me take some of the features, and then we will shift for the practical. One second, I will share the screen. Okay, can you see the screen, students? Yes, sir. Okay, okay. So, one of the feature that we have seen that for object-oriented programming, we require something called as object with something called as class, right? And how the instances of the class we are going to create, that also we have seen. And we have also seen there are two types of memories, like stack and the heap memory. The heap memory is used to store the objects, whereas the stack is divided into the stack name and stack frame. In the stack we are having we are storing, we means the OS operating system is going to store the name of the class, name of the method, and the stack frame we are having the name of the variables, you can say the objects. Now these objects are nothing but what, the handlers or reference. For human being we are calling as an object, otherwise objects are there in heap memory. So this thing that we have seen it, right? Now there is something called as a data hiding, right? So you may say, okay, that we are having the classes objects and so on and so forth. Then you may ask, then why it is required, this thing, let's say if we cannot able to do it in C and C++, let's say in C language, structured oriented approach, we are not defining the object, we are not defining the class, fine. Then what is the difference between the structure programming and over here? Why people are so much using this particular object oriented technology? The thing is like that in structure oriented programming, as I told you, let's say this is a program, and this is a top down approach. So you starts with main, ends with main, right? So this is a curly bracket open, curly bracket close, like that. Okay. Now here also you will say, here also we are having main, here also you are having ending of main, and whatever the methods you are also defined, right? It has been called within the main only. So it is same, it is happening over here. Again there is a question, why it is, there is two difference, right? And then we came to know that whatever RAM, whatever memory we are using, right? So we know now how the object oriented program is used using this particular RAM, right? But I'm assuming that you people are knowing, how the structure oriented approach they are using the RAM. They are also using the same thing, they start with the first location. Let's say main is executing, and then main is calling another function, let's say CLR is here, it clears the screen, again it will come back, then it will say scanf, again it will go, it will scan the data, it will take it that output, then again you will say go for printing, then again you will print the statement, and again you will come back. So this is jumping from one location to another, that this is also doing it, right? The thing is that we have seen that if you create an instance, O1 is one instance, O2 is another instance, right? And let's say the variables we are using in the particular C program, right? Let's say I or j, these are the two variables, right? And if I'm saying what are the values of I and j, once you run the program, so let's say I will, you entered 5 value, j you entered 4 value, fine. And again now I'm saying now again re-enter the value, you do not terminate the program. So let's say you are having the loop, again you are asking what is the value of I, again you say 6, then what you are doing, you are overwriting the value of this 5, because you are having only I and j, only one instance. आपके पास एक ही इंस्टेंस रहता है once you are doing with the structure oriented programming. If I am again re-enter the value of j, if I am saying enter the value of j again using while loop, जब तक मैं end नहीं करता हूं तब तक enter the value of I, then j, then I, then j. But what is happening?
this value is getting overwritten, right? This is value, so 4 है, बाद में 5 है, then 6, whatever it is, you know. So the values are getting overrided, I can say override. That is something called as override. Means what? This is being replaced by the new value. Over here, what the things we can do it, if you create an objects, so objects will have this ing, objects o2 will have again ing. Why this is happening? Because we are creating the instances, we are going to create the different objects. So इधर अगर मैं बोलता हूँ what is the value of ing of o1, o1 का क्या वैल्यू है, let's say 5 and 4. What is the value of o2 of ing only, of ing? So variables are two only, but instances are different, and that's why we may get value 6 and 5. What can be the value of o3? Then this thing, how many objects, how many instances I can able to create? N number of instances. So there is no restrictions of over here. So what is happening, you know, this I and j, whatever the value are getting replaced or overwritten one another, this is not happening in object oriented. So obviously one can think, even though this is not persistent data, this is temporary data. I'm not going to save this value in database, right? I'm not going to save this value in my hard disk. Now still I can have the different values of same variable, but different instances, different objects. That is what is something called as data hiding. Hello, can you able to listen me? Yes, sir. Okay, and the screen is visible also. Yes, sir. अच्छा, ये नोटपैड दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. Okay, fine. So you got the meaning of this data hiding, right? Data hiding means what? Whatever instances I am creating, right? The data hides from one instance to another instance, right? So this is my O1, this is my O2, this is my O3, whatever it is, you know, right? So whatever value of I and j which is attached to this attached. Now this is something called as what? The third feature, or you can say the third feature of this, it is something called as encapsulation. Encapsulation. What is the meaning of encapsulation? Encapsulation is nothing but the binding of the objects and the variables. Binding. So this is O1 object, and these are something called as I and j variables. It may happen that I can bind the method to the object. Last time we have seen non-static method मुझे बुलाने का है. Then using object I can call it. But how it can be called? There has to be something called as encapsulation. So if anybody asks you, you know, what is encapsulation? So you can say at dynamic runtime, the objects are getting binded, or the variables and methods, and methods are getting binded with the different instances. ये जो binding होता है, objects can call that particular variables, objects can call the methods. उसका मतलब क्या हो गया? ये जो variables है, object को क्या हो गए? Bind हो गए, link हो गए. The method is will get linked with the object. Now, if that binding is possible, then only O1 can call variable. The O1 can call method. O2 can call the same variables. O2 can call the same methods. यानी O1, O2, O3, A4, O4 कितना भी इंस्टेंस रहने दो, अपने पास है ना, अपने पास एक ही यू नो वन रूम इज देयर एंड वन रूम इज शेयरिंग बाय ऑल डिफरेंट इंस्टेंसेस. फाइन. और हर एक इंस्टेंस का अलग अलग वैल्यू है. It's not like that there will be the same value and that same value is being used by the others. No. आज एक आएगा and this lab will get shared by one person, उसका value अलग है. The another person will get use the same lab but उसका value अलग है. Right? It's like that.
ओके, द मेथड्स एंड द वेरिएबल दे आर गेटिंग बाइंडेड विद द ऑब्जेक्ट्स, और यही कंसेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं एनकैप्सुलेशन. एंड वॉट एवर आई टोल्ड यू नो, O2, O3, वॉट एवर इंस्टांसेस, और हर एक का क्या है, O2 कैन नॉट एबल टू एक्सेस द O3, O1 कैन एबल टू एक्सेस द O2. so this is something called as data hiding. ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया, ये भी एक फीचर हो गया, राइट. यानी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वो तो है ही है, बट एनकैप्सुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, डायनामिक बाइंडिंग. डेटा हाइडिंग, fine, data hiding is also possible. Why data hiding is possible? Because let's say if I am sharing with this lab, तो मेरा जो वैल्यू रहेगा, दूसरा पर्सन का जो वैल्यू रहेगा, दोनों का वैल्यू एक दूसरे को मालूम ही नहीं है, फाइन. और मालूम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आई कैन isolate the data, I can separate it, right? So it cannot be hacked by anyone unless and until I give the rights to that person. I give the rights to O1. O1 बोलेगा ठीक है, मेरा वैल्यू O2 ले सकता है, लेकिन O1 ने राइट्स देना चाहिए ना. How it will give in programmatically, that is a different kind of story, right? But this is what is called as concept. Concept तो clear होना चाहिए, right? If you go further, then there is something called as what I will say, inheritance. Inheritance. Now inheritance means what, you know, inheritance means what, there is a very nice concept. Let's say I am having class A, and class A is having what, the method, one method, then another method. This one method is called as ij. ये मेथड के अंदर वेरिएबल्स है. You know, outside the method also I can have the variables. So let's say A and B are the variables, right, which are now directly bind to class A. So वो कौन से मेथड के अंदर नहीं है. This is M1 method, this is M2 method. M2 method can have the variables like K, J, or whatever it is, right? And this class completes. Now in the same program, there may be situation that I can have the class B. So class B is there, and class B is can have the value, let's say, right, let's say LM. These are the variables of class B. Fine. उसके भी मेथड्स रहेंगे. लेट्स से M3 इज अ मेथड. M3 मेथड के अंदर भी कुछ तो x y वेरिएबल रहेंगे, राइट. M4 मेथड रहेगी, व्हाटएवर यू नो, इट इज जस्ट अ रैंडम p q करके वेरिएबल्स रहेंगे, एंड दिस क्लास इज आल्सो कंप्लीट्स, राइट. And here, let's say in class B, we are having main method, because in, you know, this programming, right, main has to be there within one class. So कौन से भी क्लास में रहने दो, there might be having, this is P1, this is my program 1. So अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि प्रोग्राम में क्लास एक ही रहता है, और क्लास के अंदर there can be 2-3 methods, and one method must be main method, that we have seen, right? But now what I'm saying, it may happen that class A consists of 2-3 methods, class B consists of 2-3 methods, and one more method is there which is main method. Now Java में rule क्या बोलता है मालूम है कि whatever classes are there, how many classes are there, n number of classes in one program, कितने भी classes रहने दो, one class must have this main, one class must have this main, and wherever main class, अभी लेट्स से ये मुझे फाइल नेम सेव करने का है, तो फाइल नेम सेव करेंगे a.java करूंगा या b.java करूंगा. द आंसर इज आई विल सेव द फाइल एज b.java. व्हाई b.java? बिकॉज मेन इज present inside this class. Main is present inside this class B. That's why I have to save the file, the whole program as b.class. अगर main A class में रहती है तो a.java, main B class में तो b.java, main C class में तो c.java. Fine, this is fine. ये तो concept clear हो गया. Now next thing, जब भी हम लोग बोलते हैं inheritance, what is the meaning of inheritance? Like one class, right, is inherited. So my arrow is like this, from this class. Inherited का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टीज, ये पेरेंट है उसका, दिस इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सिंपल. दिस इज द पेरेंट क्लास एंड दिस इज द चाइल्ड क्लास. Parent child class, it's very simple. So the child is inherited from parent. What can be the meaning of this, you know? Parent class के अंदर
जो वेरिएबल्स है, जो मेथड्स है, एवरीथिंग कैन बी एक्सेस्ड इन चाइल्ड क्लास. प्लस चाइल्ड हैज हिज ओन प्रॉपर्टीज, उसका खुद का भी प्रॉपर्टी रहेगा, उसका खुद का भी वेरिएबल रहेगा, उसका खुद का भी मेथड रहेगा. This thing is something called as inheritance. Inheritance concept is very, 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 very important. Now, whatever these things are there, it is not there in our structure-oriented programming, right? ये सब कुछ इधर है, और ये सब इसके वजह से हम लोग अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. We are having encapsulation, we are having instances, we are having data hiding. The data hiding, एक ही प्रोग्राम में डेटा हाइड कर सकते हैं, राइट? इनहेरिटेंस इज देयर. सो लाइक दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, राइट? सो इसके अंदर क्या सकते हैं, क्लास ए, लेट्स से क्लास ए इज माय पेरेंट क्लास. एज्यूम क्लास ए इज अ पेरेंट क्लास एंड क्लास बी को मुझे चाइल्ड क्लास बनाने का है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ कीवर्ड इन जावा कॉल्ड एज एक्सटेंड्स. Class B extends what? A. Class B extends A. This is possible, right? ये इसका मतलब क्या हो गया? All these things like method M1, M2, variables A, B, I can able to access within class B. Plus class B can have its own properties. यानी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड का भी खुद का प्रॉपर्टी है, और बिकॉज ऑफ दिस इनहेरिटेंस ए क्लास का जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है? वेरिएबल्स एंड मेथड्स. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए. दिस कैन बी एक्सेस्ड इन क्लास बी, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस वेरी इंपॉर्टेंट. द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये हो गया सिंगल. दूसरा क्या हो सकता है? दूसरे में क्या होता है मालूम है? वी हैव गॉट वन मोर क्लास कॉल्ड एज क्लास सी. नाउ दिस क्लास सी आई विल से एक्सटेंड्स बी. अभी मजा क्या आएगा? क्लास ए इज अ पेरेंट क्लास, उसका चाइल्ड बी, यानी क्लास ए का प्रॉपर्टीज बी के अंदर भी हो सकता है, बी का खुद का भी हो सकता है. नाउ बी हैज गॉट वन मोर चाइल्ड कॉल्ड एज क्लास सी, यानी बी का प्रॉपर्टीज वो भी गया, बी के अंदर ए का भी है, तो ए का प्रॉपर्टीज, बी का खुद का प्रॉपर्टी वो गया सी के अंदर, एंड सी हैज गॉट इट्स ओन प्रॉपर्टीज. Try to understand this concept. It's very interesting concept. This is something called as what? Multi-level inheritance. Multi-level inheritance. Multi-level कितना लेवल जा सकता है? n number of levels. Class A, Class B extends A, C, Class C extends B, Class C extends C, Class E extends D, like that, you know, A, B, C, D. So it's like multi-level. ये multi-level inheritance. Multi-level inheritance है. Now there can be a next type of inheritance. Next time क्या कर सकते हैं हम लोग? राइट, नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई क्लास ए है, क्लास बी है, राइट, एक्सटेंड्स ए. नाउ क्लास सी इज देयर, यू नो, क्लास सी है. अब ये क्लास सी क्या करेगा मालूम है? क्लास सी हैज गॉट टू पेरेंट. नाउ ऐसा बनाने का है, पेरेंट ए एज वेल एज पेरेंट बी. सो आई हैव टू राइट हियर, लॉजिकली आई हैव टू राइट हियर, यू नो, एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, राइट, यानी ए भी पेरेंट है और बी भी पेरेंट है, राइट. This is something called as what? Multiple inheritance. Multiple inheritance. देखो, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल में क्या है? मल्टीपल में चाइल्ड एक है लेकिन उसके दो दो पेरेंट है, पेरेंट ए, पेरेंट बी, नॉट दो, देयर कैन बी n number of parents, right? But now this multiple inheritance is not, cannot be directly achieved by using this. This is not at all possible. So I am saying cross. जावा में, जावा लैंग्वेज में मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते.
ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते. कैन इट बी देयर एज इनडायरेक्टली? तो माय आंसर इज यस. इनडायरेक्टली I can have this multiple inheritance in Java. So directly क्यों नहीं है? नहीं है. Extends a comma b allow नहीं करता है Java मुझे. तो मैं क्या करूंगा? There is a concept called as interface. There is a concept called as interface. मैं a ने तो b को एक किसी को तो मैं इंटरफेस बना दूंगा. आइदर b को और a को. इंटरफेस क्या है? इट्स लाइक अ क्लास. इट्स लाइक अ क्लास. जब भी आएगा तभी हम लोग देखेंगे क्या है. बट इट्स लाइक अ क्लास. तो मैं क्या करूंगा इधर, क्लास सी. देखो मैं कैसे लिख रहा हूं. क्लास सी एक्सटेंड्स ए. फाइन. एक एक को तो मेरा बेस क्लास है ही. दिस इज माय बेस क्लास. बी है इसके लिए बेस ऐसा नहीं है. पेरेंट को बोलते हैं बेस. बेस क्लास. और चाइल्ड को बोलते हैं डिराइव्ड क्लास. डिराइव्ड क्लास ये टर्म्स है जो यूज किया जाता है. विच इज बेस क्लास? बेस क्लास इज नथिंग बट पेरेंट क्लास. Which is a derived class? Derived class any child. Child is being derived from parent. That's why. So class B, class C extends B and इंटरफेस है ना. इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंट्स. ये कीवर्ड यूज करते हैं जावा में. इम्प्लीमेंट्स व्हाट ए? बिकॉज ए इज इंटरफेस, राइट. बिकॉज ए इज इंटरफेस उसको मैं बोलूंगा इम्प्लीमेंट. And because B is not interface, I will say extends B. Now, can I have more than 2 classes can be inherited? Yes. तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितने एक बेस क्लास छोड़ के जितने जितने अदर क्लासेस है वो सबको मेरे को बनाना पड़ेगा इंटरफेस. एंड नाउ आई कैन राइट क्लास सी एक्सटेंड्स बी इंप्लीमेंट्स ए कॉमा डी कॉमा ई कॉमा सो एंड सो फोर्थ. यानी बी ए डी ई 4 पेरेंट क्लास हो गए. एंड सी इज अ डिराइव्ड क्लास. इट इज द चाइल्ड क्लास. C child class A, and it is inherited from different parents. And how different parents can be possible? This is possible in Java. So Java says if you want to achieve multiple inheritance, आपको अगर multiple inheritance achieve करने का है तो अपने पास एक रास्ता है. और वो रास्ता क्या है? वो रास्ते का नाम है इंटरफेस. Go on creating the interfaces whatever you want, right, and create one child. So that child can have get a property of one base class and another properties from different interfaces. This is possible, and this is what is something called as multiple inheritance. Now there is one more inheritance जो है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस. हाइब्रिड, राइट. अभी हाइब्रिड का क्या मतलब है? आई विल क्लियर दिस एंड अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड. वन क्लास इज देयर, क्लास A, which is a base class, right, which is a base class, and class, let's say B, is inheriting from class A. Then there will be an interface called as D. There will be interface called as E, right. ये तीन क्लासेस हो गए. And then there will be one more class called as P which extends B. यानी ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस. ये दोनों को बोल के हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं. ये तीनों को बोल सकते हैं हम लोग क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ये चीज को हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. और ये सब का मिक्सर है जिसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस. Have you understood? Can you repeat, Yes. hybrid? क्या हुआ? Sir, can you repeat once hybrid structure? हाइब्रिड, यस. ये देखो, ये जो पहला है अपना सी फर्स्ट A इज देयर एंड क्लास A, हाँ, एंड क्लास B इज देयर एंड क्लास B एक्सटेंड्स A. सो इसके लिए मैंने एरो किया. सो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस, करेक्ट.
सिंगल हो गया, यानी एक ही क्लास है, दिस इज चाइल्ड क्लास, एक क्लास है दैट इज बेस क्लास, पेरेंट क्लास, राइट। बाद में देर इज वन मोर थिंग कि देर इज वन मोर क्लास कॉल्ड एज क्लास सी। सो नाउ क्लास सी एक्सटेंड्स बी। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? मल्टी लेवल, करेक्ट, बराबर ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इधर तक समझ में आ रहा है। नाउ देयर विल बी अ क्लासेस, यू नो, देयर विल बी अ क्लास डी, देयर विल बी अ क्लास ई, राइट। तो ये भी किसी के पेरेंट है, राइट। तो वो किसके रहेंगे? सपोज सपोज दिस इज जस्ट एग्जांपल, सपोज बी इज इंप्लीमेंटिंग डी एंड इंप्लीमेंटिंग ई, यानी बी क्लास के कितने पेरेंट हो गए? 3 पेरेंट हो गए। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? मल्टीपल, बराबर है। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल, ये पूरा स्क्वायर बॉक्स है, दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर वी कैन सी देयर वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल भी है, मल्टीपल भी है, राइट। सो लेट अस कॉल दिस द the structure of this inheritance called as hybrid। तो hybrid यानी क्या? सबका मिक्सर, सबका ऐसा नहीं, we can have single and multi level, this is also called as hybrid, right। we have got single and multiple, this is also called as hybrid, और सबका मिक्सर, this is also called as hybrid। so hybrid is something like, you know, it's a mixture of inheritance में जब भी ये ऐसा अलग अलग टाइप का आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। अगर एक ही वन एग्जांपल में क्लास ए क्लास बी एक्सटेंड्स ए तो सिंगल, क्लास ए क्लास बी एक्सटेंड्स ए क्लास सी एक्सटेंड्स बी, मल्टी लेवल, क्लास ए एक्सटेंड्स बी, राइट, implements d comma e, right, comma so and so forth, this is something called as what? multiple। समझ में आएगा अभी हाइब्रिड का? एनीवन हैज गॉट एनी काइंड ऑफ डाउट? No, sir. हाँ, see now the same thing is over here, I will show you। now see the documentation, हाँ, documentation में देखो, where is documentation? ये तो नहीं है, one second, setup, oh, it is taking time। already there are so many tools that I have opened na, that's why it is taking time, but एक बार, you know, once it will start then I think फटाफट देख सकते हैं। yes, आ गया। so we are here, java.base is a foundation API, and over here we have seen java.lang is a default package and object is the root class, right। in all lectures I will tell again and again, तो आपके दिमाग में वो लॉक हो जाएगा। yes, right। so what I was telling, you know, you take any one class, कुछ भी class ले लो and you can see the syntax of the class, right। for example if I am saying, you know, जैसे हम लोग class system यूज कर रहे हैं, now if I am saying, you know, do you know the syntax of class system, you have to say yes, see ये देखो, what is this written, you know, it's a public, it's final class, final का मैं मतलब समझ में I will explain you, don't worry, but this is a class extends object, are you getting what I'm trying to say? extends object का मतलब क्या? object is a base class, object ऊपर है, object is a parent class, and नीचे क्या है? system class। so system is extending the property of object। now this is the meaning of what? single inheritance, ये single inheritance है। now अभी object class का है ना, जब मैं बोलता हूँ ना object is the root class, root class यानी क्या? कि उसके आगे कुछ नहीं है, यानी
Object is inheriting the properties from whom? So no, you can just see. Click the object, see the definition of the object. ये syntax है. Public class object, correct? So public class object which is not extending from anyone. Why? Because वही तो root है. That's why, and that's why it is written over here also. Documentation में भी लिखा है. Class object is a root of class hierarchy. Very very important. Now दूसरा कौन सा भी क्लास ले लो, जैसे अभी हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिया, और यू कैन टेक एनी वन क्लास, लेट्स से ये जो आउट था और प्रिंट स्ट्रीम. इफ आई एम सेइंग व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, नाउ यू कैन लुक एट दिस सिंटैक्स. इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको सिंटैक्स नहीं बोला था, बिकॉज यू मे वंडर कि ये क्या इधर से आ गए. नाउ यू कैन सी पब्लिक क्लास प्रिंट स्ट्रीम एक्सटेंड्स फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, यानी बेस क्लास क्या हो गया, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, एंड इंप्लीमेंट्स. देखो इधर अपेंडेबल एंड क्लोजेबल, यानी ये इंटरफेस है. कैसे? क्लिक करो अपेंडेबल पे, यू कैन जस्ट सी पब्लिक इंटरफेस अपेंडेबल. सो इट इज लाइक अ क्लास ओनली. हम लोग जब भी इंटरफेस आएगा तभी करेंगे, बट इंप्लीमेंट्स के आगे जो लिखा जाता है दैट इज ऑलवेज इंटरफेस. नाउ बिकॉज आई एम टीचिंग यू व्हाट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता क्या है, इसके लिए अभी इंटरफेस यानी क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए. तो नाउ इफ यू लुक एट दिस प्रिंट स्ट्रीम क्लास, यू कैन सी देयर विल बी 2 बेस क्लासेस, 3 बेस क्लासेस. फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम भी है, अपेंडेबल भी है, क्लोजेबल भी है. उसमें से फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम उसका बेस क्लास है, अपेंडेबल एंड क्लोजेबल ये 2 इंटरफेस है, राइट. चाइल्ड क्लास इज प्रिंट स्ट्रीम. How many parents are there? 3 parents. Out of 3 parents, 1 parent is base class and 2 parents are the interfaces. Right? So ऐसा आप कुछ भी कौन सा भी क्लास देखोगे तभी मालूम पड़ेगा. See now class filter output stream extends output stream, यानी ये किधर से आ गया? आउटपुट स्ट्रीम से. आउटपुट स्ट्रीम किधर से आ गया? और आउटपुट स्ट्रीम आ गया ऑब्जेक्ट से. Implements closable and flushable. See this. Now closable and flushable, both are the interfaces. So ऑब्जेक्ट किधर है? यू गो टू द ऑब्जेक्ट. यू कैन से ये ऑब्जेक्ट हायरार्की, यानी जो भी आप क्लासेस इंप्लीमेंट करते हो, जो भी क्लास आप लोग इनहेरिट करते हो, उसका ओरिजिनल भगवान कौन है? ऑब्जेक्ट. सबका मिलन ऑब्जेक्ट में है, राइट. ये बात ध्यान में रखो, राइट. वॉट एवर क्लास, दुनिया में जावा का कौन सा भी क्लास ले लो, उसका ओरिजिन किधर है? ऑब्जेक्ट में. यानी किधर ना किधर तो आपको ऑब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा. एंड अल्टीमेटली यू विल से अरे यस ऑब्जेक्ट, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, उसका पेरेंट तो कोई नहीं है, तो सबका पेरेंट कौन है? सबका बाप कौन है? इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट. So object is a root class. Okay, so it's like that. So you now got a concept of interface and object, sorry classes. इनहेरिटेंस समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हाँ, yes, fine. Okay, now let us look at the concept is something called as polymorphism, right? जबरदस्त कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म. यानी पॉली का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मल्टीपल. मॉर्फिज्म का मतलब क्या है? इट्स लाइक one object converts into the another object. So it's, you can say conversion. One object converts into another object, right? आपने माइकल जैक्सन का अगर ब्लैक एंड व्हाइट गाना, if you have seen the video, then you may say, लास्ट में क्या होता है? लास्ट में ना one person look at here and once it come back, उसका object change होता है. The faces get changed. What is the meaning of it? It's nothing but a morphism. Morphing technology. One object converts into another object and that is called as multiple. अभी इसका सिंपल मतलब क्या है मालूम है? लेट्स से आई एम हैविंग ऐड एंड कितना ऐड? एक इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर वैल्यू है. सो आई एम हैविंग इंटीजर ए एंड इंटीजर बी. तो ये एक मेथड हो गया एक ही क्लास के अंदर. आई एम सेइंग एक ही क्लास के अंदर देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड एज ऐड ओनली. बट नाउ हियर आई एम पासिंग फ्लोट ए एंड हियर आई एम पासिंग int b. Let's say there can be method can be called as add. Method name is same, parameters are different, right? So अभी इधर में int और एक int आ सकता है. What I am doing, the name of the method same, it is same.
राइट. इट मे हैपन, ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू. ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, ये रिटर्न करेगा मुझे फ्लोट वैल्यू. 1 plus 2.0 is equal to 3.0 only. This theory you know, you are mathematical people, right? इंटीजर, तीन इंटीजर वैल्यू इंट करो, मुझे क्या रिटर्न करेगा, यानी वी नो द थ्योरी. हम लोग का थ्योरी क्या है, व्हाट इज कॉल्ड एज मेथड और व्हाट इज कॉल्ड एज फंक्शन. ये मेथड है, यानी क्या, ये मेथड कुछ ना कुछ तो करता है. ये कुछ ना कुछ तो करने के लिए मीन्स व्हाट इट प्रोसेस, व्हाट इट वर्क्स, इट प्रोसेस ऑन व्हाट यू पैरामीटर यू पास. आपने पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो भी जो जाके वो कुछ तो करेगा, प्लस माइनस जो भी आप लिखोगे वो. एंड व्हाट इट शुड रिटर्न समथिंग, राइट. इफ आई एम सेइंग राइट, स्टूडेंट प्लीज राइट, तो आप बोलोगे सर लिखने के लिए कुछ दे दो तो सही. यू वांट सम पैरामीटर ना टू राइट. तो मैं बोलूंगा चलो राइट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आई हैव गिवन यू द लिस्ट. मैंने वैल्यू भी दिया, ये लिखने का है, एंड यू विल राइट एंड यू हैव टू सबमिट आल्सो ना. अब रिटर्न तो करना पड़ेगा, लिख के आपके पास ही रखा तो क्या फायदा है. दैट इज नॉट कॉल्ड एज मेथड, दैट इज नॉट कॉल्ड एज फंक्शन. Same concept is there in programming. So whenever you want to do this, whenever you want to perform something, you require parameters and you require return value, right. Now you can look at this. Now what is happening here, what is happening, let's say I am defining also, यानी मैं curly bracket open किया, close किया, curly bracket open किया, close किया, curly bracket open किया and close किया. और इसमें के मैं क्या बोलता हूँ, इसमें मैं बोलता हूँ x इक्वल टू a प्लस b प्लस c. इधर मैं क्या बोलता हूँ, d इक्वल टू वॉट एवर इट इज, a प्लस बी. और इधर मैं बोलता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस बी, वॉट एवर इट इज. ओके, राइट. नो व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड और फंक्शन बॉडी. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फंक्शन बॉडी. इसमें कुछ तो परफॉर्म हो रहा है, राइट. दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन बॉडी और मेथड बॉडी. नाउ दिस मेथड बॉडी इज डिफरेंट ना, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है. व्हाई, बिकॉज पैरामीटर्स ही डिफरेंट है ना सब, राइट. व्हाट इज हैपनिंग, मेथड का नाम सेम है, पैरामीटर्स डिफरेंट है, राइट. रिटर्न टाइप भी डिफरेंट है. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म. इसको ही हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मल्टीपल, add, right. And it is adding different kinds of parameters are passing, different kinds of it is functioning in different way, and it is returning also different value, different types of variables, right. So polymorphism, तो polymorphism में ना जनरली दो टाइप के polymorphism रहते हैं, राइट. दो टाइप के polymorphism रहते हैं. there is one something called as, there is something called as मेथड ओवरलोडिंग. मेथड ओवरलोडिंग, क्यों, मेथड के बारे में ही बोल रहे हैं ना हम लोग. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग. अभी इसमें मजा देखो. नाउ अगेन आई विल से, रिटर्न टाइप इज सेम, राइट. फंक्शन मेथड नेम इज सेम एंड द पैरामीटर्स आर सेम. हियर type is same, right. Return type is same, this is same, and here I am having the parameters are different. Here the body is same only, the method body is same. ये भी ऐड करता है, ये भी ऐड करता है, body is same, you can say, right. और let's say ये एक है, ये इधर float है, right, and I am writing also float. एंड इधर ये क्या है, c इज इक्वल टू a प्लस बी. लेट्स से इधर मैं लिखता ही हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. एंड सेम थिंग इज ओवर हियर ऑल्सो. नाउ यू ऑल्सो विल कम टू नो, आपको एक मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है. मेथड बॉडी सेम है, इसमें भी, इसमें भी, नाम भी सेम है, इधर भी है, इधर भी है, बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट. पैरामीटर्स आर डिफरेंट. देयर विल बी वन मोर मेथड, एक और एक मेथड ऐसा भी रह सकता है, राइट. इधर, राइट, जिधर दोनों वैल्यू फ्लोट है, राइट. और ऐसा भी हो सकता है कि जिधर पहला इंट है और दूसरा फ्लोट है,
right? So there can be n number of combinations. What I'm trying to say, there can be n number of combination. ये एग्जांपल में दे रहा हूं आपको. So अगर ये वाला जो चीज है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरलोडिंग. ये क्या हम लोग ने किया है? वी हैव ओवरलोडेड द मेथड. मेथड को मैंने ओवरलोड किया है. ओवरलोड का मतलब क्या है? पैरामीटर्स अलग अलग पास किए, बस. वो काम भी सेम ही करता है, काम एडिशन का ही है, लेकिन पैरामीटर्स में अलग अलग पास करता हूँ. एक फ्लोट करूंगा, एक इंटीजर करूंगा, दोनों इंटीजर करूंगा, दोनों फ्लोट करूंगा, नहीं तो पहला इंट दूसरा फ्लोट, और वॉट एवर इट इज, बट द ऑपरेशन इज, इट इज गोइंग टू परफॉर्म एडिशन ओनली. राइट? आई एम ऑल्सो नॉट बॉदरिंग अबाउट व्हाट टाइप ऑफ इट इज रिटर्निंग मी. मुझे रिजल्ट रिटर्निंग कर रहे हैं ना, बस. रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं ना, इन विच फॉर्मेट इट इज ऑल्सो आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट. बट this thing whatever I have shown you, it is something called as method overloading. So आपको किसी ने भी पूछा भाई मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है मेथड नेम इज सेम, मेथड बॉडी इज सेम, पैरामीटर्स आर डिफरेंट. बस एकदम सिंपल. उसका कुछ इतना डेफिनेशन ऐसा सोचो मत, यही डेफिनेशन है. मेथड नेम, बॉडी are same and parameters are different. That's it. Now overriding में क्या है? Overriding में मजा है. Overriding में है method name, right, and parameters are same, body is different. Body is different. तो इधर भी मेरा int है, इधर भी int है, इधर भी int है, इधर भी int है, और लेट्स से सब सब यही है. तो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट. ये सभी सेम ही है, सेम ही है. अभी इधर ऐड है, बट आई एम सेइंग ए प्लस ए, वापस ए करो, और हियर आई विल से प्लस 100 करो, और हियर आई विल से प्लस 200 करो, वॉट एवर इट इज. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेंजिंग द मेथड बॉडी. मैं बॉडी को चेंज कर रहा हूँ, यानी प्रोसेसिंग चेंज कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग चेंज कर रहा हूँ. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, पैरामीटर्स आर सेम, फंक्शन नेम इज सेम. तो मेथड नेम एंड पैरामीटर्स आर सेम, बॉडी इज डिफरेंट. तो ये मैं क्या किया? मेथड को ओवरराइड किया. मेथड को ओवरराइड यानी क्या? बॉडी को मैं चेंज करता हूं, एवरीथिंग इज सेम. ओवरलोड का मतलब क्या है? पैरामीटर्स में डिफरेंट करता हूं, बॉडी सेम है, मेथड नेम सेम है. आर यू गेटिंग? समझ में आया कुछ तो? Yes, sir. ओके. एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है. Sir, number of parameters should be हाँ, वो भी different. हो सकते हैं. पैरामीटर्स आर डिफरेंट, यानी आप कौन सा भी पैरामीटर कैसे ही टाइप का भेजो, मेथड नेम सेम होना चाहिए एंड बॉडी सेम होना चाहिए. पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट. No, sir, I'm asking numbers of parameters. Like we are n passing two number of parameters, parameters you sir. can We pass. can pass There is three no parameters. restriction. Also. There is no restriction. Now ये जो string arjs है ना, string arjs, what you are passing, डायनेमिक है ना, वो भी पैरामीटर पासिंग ही है ना. यस, हेलो. Yes, sir. हाँ, वो भी पैरामीटर पासिंग ही है, Yes, दैट sir, इज yes. डायनेमिक अरे. और डायनेमिक अरे का मैं क्या बोला है कि जितना आपके पास मेमोरी का साइज है उतना आप मेथड पैरामीटर भेजो. राइट? आप 1000 भेजो, 2000 भेजो, आपके ऊपर है. राइट? हम लोग को कैसे करने का? नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये अभी मैं कंसेप्ट क्यों बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज आई थिंक यू मे से आपको मिनी प्रोजेक्ट करने का है. वन थिंग. Another thing is that one or two I think projects they have also participated in hackathon, and they were trying to say me कि सर आप हम लोग को पहले डेटाबेस का बोलो कि डेटाबेस का कैसे करने का, क्या करना है. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक इट. ओके, बट द थिंग इज दैट you have to use all this concept in your project, तो ही आपको ये प्रोजेक्ट कहलाता है. राइट? जस्ट मैं इसके लिए बोला ना, वन प्रोग्राम कनेक्टिविटी विद अनदर प्रोग्राम, वो तो आप इधर भी करो ना. सी इफ यू गूगल इट, गूगल से किया तो मुझे भी पूछने का जरूरत नहीं. दिस इज ऑल्सो यू कैन एबल टू राइट जावा सोर्स कोड विथ MySQL, राइट? MySQL database connectivity.
दिस इज सो सिंपल वन, यू नो, दिस इज सो सिंपल वन दैट यू विल गेट इट। उधर स्टेप भी लिखा रहता है, देखो क्या करने का है आपको, क्या नहीं करने का है, राइट, कैसे प्रोग्राम लिखने का है, पूरा एग्जाम्पल, सी दिस एग्जाम्पल इज डिक्टो रेडी, यू कैन डाउनलोड दिस एग्जाम्पल, राइट, क्या डाउनलोड करने का है, जार फाइल डाउनलोड करने का है, देन हाउ यू कैन कॉपी पेस्ट इट, हाउ यू कैन डू इट, एवरीथिंग इज गिवन। और ये सेम टू सेम आपने फॉलो किया ना, इधर उसने ये भी करके दिखाया, यू नो, इस वीडियो इज ऑल्सो देयर। सो इफ यू डू लाइक दिस, then you will get database connectivity. It's so simple, it's very very simple, you know, right? लेकिन इसमें अगर मैं बोलता हूँ आपको कि भाई आपने ये मल्टीपल ऐसा कुछ, यानी व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी यू आर यूज्ड इट ओवर हियर, ऐसा कुछ तो बोला, देन यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपको खाली मालूम है जावा डॉट एसक्यूएल नाम का पैकेज है, फाइन, उसके अंदर अलग अलग, यू नो, कनेक्शन इज द नेम ऑफ द क्लास, स्टेटमेंट इज द क्लास, रिजल्ट सेट इज द क्लास। नाउ इफ आई एम आस्किंग यू, यू नो, कि ये कनेक्शन क्लास वो आया किधर से, रिजल्ट सेट क्लास आया किधर से, किसको किसको वो इम्प्लीमेंट करता है, हाउ यू आर गोइंग टू इंस्टेंशिएट इट, इफ यू डोंट नो दिस कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट अगर आपको ये मालूम नहीं है ये हो क्या रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट, जस्ट बाय राइटिंग द प्रोग्राम एंड पुटिंग इट इन द विजुअल स्टूडियो कोड, जैसे ये भी, यू नो, इधर भी इन्होंने ये वही यूज किया है, यू नो, और वट एवर इट इज एडिटर, एंड जस्ट रनिंग एंड गेटिंग द आउटपुट, दिस नॉट गोइंग टू मेक अ सेंस एट ऑल, उसका सेंस बनता ही नहीं है। तो बुकिश नॉलेज कैसा होता है, बुकिश नॉलेज, आई गॉट 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर्स, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, नाउ आई विल से नाउ अप्लाई दिस, करके बता मुझे, एक अलग अलग खुद का डिजाइनिंग करके बता, तो वो बंदा खुद का डिजाइनिंग कभी जिंदगी में नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज ही डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कम्स, वेयर आई एम यूजिंग इट, हाउ आई एम यूजिंग इट, राइट। और मुझे खुद को ऐसा करना चाहिए कि अगर मुझे खुद को भी ऐसा करना चाहिए, यू कैनॉट एबल टू डू दिस, दैट इज द problem, that is the biggest problem, without knowing the technology, without knowing the technology, you are directly jumping over there। यू में से कि अभी हम लोग ये भी कर रहे हैं तो मिनी प्रोजेक्ट भी करने का है ना, हाँ भाई करने का है, वो भी करने का है, इसके लिए तो मैं जल्दी मैक्सिमम हो सके उतना फास्ट 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 जा रहा हूँ, राइट। लेकिन अभी कैसा है मालूम है कि अभी आपको मैं डायरेक्टली इंटरफेस आने का, ये आने का, ये सब एक ही टाइम पे, यानी 1 घंटे में भी पूरा सिलेबस सिखा सकता हूँ, क्रैश कोर्स जैसा, और पूरा 10 दिन में भी सिखा सकता हूँ, 1 महीने में भी सिखा सकता हूँ। इट डिपेंड्स, यू नो, इट डिपेंड्स हाउ मच प्रैक्टिस यू आर डूइंग, आपका प्रैक्टिस कैसा है वो मुझे, अगर आपको आता है देन ओनली यू कैन डू इट। अभी जो मैं बोला था ना, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड एवरीथिंग, तो फटाफट आपको भी आना चाहिए करने को, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, पैकेज डिफाइन करने का, तो पैकेज किधर आएगा, लाइक दैट, यू नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनहेरिटेंस, एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बट आई एम श्योर दैट यू विल डू इट, डेफिनेटली यू विल डू इट। इसके लिए मैं मेरे तरफ से कंसेप्ट फटाफट ले रहा हूँ, राइट। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उधर जाओ मत, इधर जाओ मत, ऐसा नहीं है, उल्टा सब जगह पे जाओ, सब जगह पे पार्टिसिपेट करो, एंड यू परफॉर्म इट, राइट। बट नो द कंसेप्ट, प्लीज नोइंग द कंसेप्ट एंड देन गो, without knowing the concept, just putting the code and executing it, and then you are saying sir ये देखो मेरे को ये आ गया, आ तो गया, तो वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस, बट वेदर यू आर अंडरस्टूड और नॉट कंसेप्ट, वो आपके ऊपर है, राइट, वो आपके ऊपर है, राइट। सो प्लीज गो थ्रू इट, प्लीज गो थ्रू इट, एंड देन यू डू इट, ओके। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट। सो लेट्स टेक इट, जैसे मैंने बोला था कि यू नो a small program that we took it like you know, calling the functions and knowing, you know, how can it call, how you are calling using object, if it is non-static, how can you declare the variable outside main कैसे define करने का, so and so forth, right? So let's take one more program which I will say single inheritance। तो सिंगल आयन, इतना ही लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखता हूँ, बिकॉज मुझे ये सब नाम टाइप करने का पड़ेगा बाद में। So single ln is one of the program, and here I will say, you know, class A, I will say, here I will have the, you know, variables like int I comma j, for example, and here I will say, or here I will initiate also, let's say I is equal to 5, 6 is equal to, or j is equal to 6, right? And here is something like, you know, the method called as welcome A, right? And here we are going to go ahead, हम लोग इसको
बढ़ाने वाले प्रोग्राम को, जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. And here let's say you are printing the value of, you know, you are printing the value of I and j, I and j, and here you will say I comma j, like that. Okay, and it is not doing anything, right? Okay, और ठीक है, अभी हम लोग इतना ही करेंगे. एंड देन नाउ माय क्लास, मेन क्लास इज देयर. मेन क्लास यानी जिधर मेन मेथड रहता है वो, और मैंने जावा का फाइल ही सिंगल आयन से यूज किया है ना, तो सिंगल आयन का एलएन यूज किया है, क्या मालूम, अरे यार भूल गया. सो इट इज एलएन और आयन. भाई क्या लोग, क्या मैंने डाला था मालूम है क्या? Alan, sir, Alan. एलएन था Yeah. ना कुछ तो, बट एलेन था सर. अच्छा एलएन, एलएन, ओके ओके, ठीक है. सो नाउ हियर आई एम हैविंग पब्लिक स्टैटिक void main. Okay, and then you say string args. Okay, now what I am doing, this single ln, right, it is extending a, extends a. So single ln extends a. We have got these variables as well as this welcome method, right? And now here I want to call welcome a, right, welcome a, right. So let's see कि ये प्रोग्राम है बराबर हो रहा है कि कुछ गड़बड़ दे रहा है. सिंगल ln dot java, right, what happened? Single ln dot java, right. I think I have to go for the DOS prompt. Something goes wrong, I will check it afterwards what goes wrong. But now where I am in d colon and I think Java programming. Okay, and here I am having this file single ln, fine. Okay, so now ये Java तो इधर चल रहा है, very nice. So here I will say Java s star dot java. ये भी पॉसिबल है, s यानी s नाम से जो भी जावा फाइल्स है, all the Java file will get compiled using star dot java. I need not to put everything, right? Welcome a, invalid declaration, return type required, right? So what I should have, I should have the return type. Okay, so here I will say void, नहीं रिटर्न कर रहा है तो void है. Okay, now what happens, cannot be referred as a static method, correct? So static method हम लोग नहीं कर सकते, तो ठीक है ना भाई, ऑब्जेक्ट बनाओ उसको, ln s equal to new single ln, fine, and you can call s dot welcome a, right, because this is non static, right, और ये static method है, and we have seen the rule, right. Now let's do it. Again there is something called as what, the parameters. This is not applicable, right, I comma j, ये ऐसा possible नहीं है, right. So I will just say, you know, one by one I will print. Okay, concatenation हम लोग बाद में देखेंगे. I will just say j and this is j. Let's see. Okay, fine. तो कुछ एरर नहीं है. Now see, ये मैंने क्लास को कंपाइल किया तो मुझे क्या मिला, इधर dir करके देखो. See, there are two classes generated. One is called as a dot class and another one is dot single ln dot class. ये समझ के ले लो, राइट, या समझ में आ गया? यानी एक जावा फाइल है, फाइन, एक जावा फाइल के अंदर दो क्लास है, और कंपाइल करने के बाद में मुझे दो अलग अलग क्लास मिलते हैं, ए डॉट क्लास एंड सिंगल एलएन डॉट क्लास. यानी ए डॉट जावा फाइल मैंने किया था, क्या नहीं किया था, एलएन डॉट जावा के अंदर मेरे पास दो क्लासेस था, क्लास ए एंड क्लास सिंगल एलएन. बट सिंगल एलएन इज एक्सटेंडिंग ए ना, एक्सटेंड किया है तो उसका प्रॉपर्टी सब एलएन को मिलना चाहिए. नाउ इफ आई एम रनिंग द प्रोग्राम, single ln
single ln. Now what I'm going to say 5,6 यानी 5 and 6 ये मेरे को प्रॉपर्टी मिल गया. See, I can able to print what I, 6 यानी ये जो वेलकम मेथड है, हाउ कैन एबल टू कॉल दिस. क्लास ए का वेलकम मेथड है, ये सिंगल एलएन का अलग है, सिंगल एलएन में वेलकम है ही नहीं. बट हाउ आई एम कॉलिंग दिस बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. अभी ये ऑब्जेक्ट से मैं वो मेथड कैसे बुला सकता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंडिंग. ये सिंगल इनहेरिटेंस का पावर है. और इसके लिए मैंने ये जो मैंने इंस्टेंस बनाया है, ये इंस्टेंस का वैल्यू क्या था, आई जे. तो आई जे के अंदर क्या आ गया, एस डॉट आई, एस डॉट जे. तो दोनों मुझे आ गया 5 and 6 आई कैन एबल टू एक्सेस. यानी ये सब मैं एक्सेस किया इसके अंदर. हाउ कैन आई कैन एक्सेस इज बिकॉज ऑफ दिस नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट. अभी सपोज ये सेम मेथड है, बट नाउ इफ आई एम यूजिंग स्टैटिक, एक ही यहाँ दो मिनट ही लेता हूं मैं. आई नो दैट दिस थिंग इज देयर. यानी 25 बजा है. नाउ लेट्स से ये वेलकम बी है, बट नाउ दिस इज स्टैटिक मेथड, राइट. सो हियर आई विल से वेलकम बी. नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एंड सी. पहले कंपाइल करते हैं हम लोग. what happen, you know, नॉन स्टैटिक वेरिएबल. नाउ ये नॉन स्टैटिक का लफड़ा आ गया कि इधर ये नॉन स्टैटिक है ना, इसके लिए वो चिल्ला रहे हैं. जैसे स्टैटिक ना, स्टैटिक बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, राइट. हो गया. नाउ कैन आई रन द फाइल. यस, रन द फाइल सिंगल एलएन. ये देखो 5,6 इसका भी आ गया, 5,6 इसका भी आ गया. आई एम हैविंग नाउ दिस वैल्यूज. सी दिस एस इज एन ऑब्जेक्ट. एस के अंदर में आई एम कॉलिंग दिस पर्टिकुलर मेथड विच इज नॉन स्टैटिक. एंड जो स्टैटिक मेथड है उसका खाली मैंने डायरेक्टली नाम लिखा. एंड हाउ कैन आई कॉल, हाउ कैन दिस क्लास कैन कॉल द अनदर क्लास मेथड, बिकॉज दैट क्लास इज अ बेस क्लास ऑफ दिस. यानी दोनों का रिलेशनशिप है. व्हाट इज रिलेशनशिप, ये चाइल्ड है और जो क्लास ए के अंदर मेथड से वो पेरेंट है. तो पेरेंट का नॉन स्टैटिक रहने दो, स्टैटिक रहने दो. आई कैन एबल टू एक्सेस इन माई चाइल्ड क्लास. And this is how I can say my single inheritance is achieved in Java, right. ये ऐसा जो चीज है ना वो C में पॉसिबल नहीं है. C++ इसमें पॉसिबल है, बट C++ is nothing but what, C language plus object oriented feature into it. That's why it is possible in C++. C में ये पॉसिबल है क्या, नहीं है. Java में पॉसिबल है क्या, yes. Now ये पॉसिबल है, इसके लिए I can do able to do any kind of project. देखो मैं एक क्लास स्टूडेंट and class teacher. Class student is writing the assignment. Who is going to check? Class teacher. One more student. So I can go on creating the instances of the class. Student S1, student Aditya, student ye, student wo, right? And I can have the rights of accessing their assignment because I am the child and you are the parent, like that. So parent का सब features मैं access कर सकता हूँ. इसमें parent यानी ऐसा नहीं है कि he is elder, he is younger, ऐसा कुछ नहीं है. But I can able to access all the properties what you are doing. That's why I am inheriting the properties from your class. ऐसे टाइप का प्रोजेक्ट में बना सकता हूं. एंड देयर इज आइसोलेशन ऑल्सो. यानी आदित्य का जो असाइनमेंट है वो दूसरे के असाइनमेंट को क्लैश नहीं हो जाएगा. व्हाई, बिकॉज देयर इज आइसोलेशन, देयर इज डेटा हाइडिंग, देयर इज एनकैप्सुलेशन, देयर इज पॉलीमॉर्फिज्म. आई कैन ओवरराइड द मेथड. जो असाइनमेंट ये लिख रहा है वही असाइनमेंट मैं बोलूंगा चलो ये, बट आई एम ओवरराइडिंग. असाइनमेंट चेंज कर, पैरामीटर सेम रख. It's like that, you know. So programmatically I can design my all the whole real time project. That is the beauty of this object oriented programming. So ये single inheritance हमने अचीव किया. So let's do, फटाफट हम लोग आगे जाएंगे and try to go for this. अभी ये जो है ना, ये जो थर्ड असाइनमेंट है और थर्ड प्रोग्राम है, राइट, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, राइट. मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है. हम लोग को क्लास से क्लास को कॉल करने का, मेथड से. नाउ देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, यू कैन सी दिस. बैंक के अकाउंट्स अलग अलग है, राइट. जो बैंक के अकाउंट्स अलग अलग है, द पर्सन इज डिफरेंट एंड पर्सन इज, यू नो, एज अ मैनेजर हाउ कैन आई एबल टू एक्सेस द अकाउंट. किसी को क्रिएट करने का है, किसको डिपॉजिट करने का है, हाउ कैन द पर्सन कैन विड्रॉ द अमाउंट, हाउ कैन द डिस्प्ले द बैलेंस ऑफ दैट पर्सन. नाउ दैट बैलेंस कैनॉट बी सीन बाय एनी अदर ऑब्जेक्ट. ये जो चीजें जो है ना, इसके लिए मुझे ये इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है. देन ओनली यू कैन एबल टू डू दिस थिंग. एंड इफ यू कैन एबल टू डू दिस थिंग, बैंकिंग एप्लीकेशन, तो ये तो आपका मिनी प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है.
मिनी प्रोजेक्ट में हम लोग को यही करने का है, चीजें ये सब चीजें करने का है. नाउ यू यूज JSP सर्वलेट, you use swing or use whatever, at the back end you use whatever. डेटाबेस कनेक्टिविटी इज नॉट अ बिग डील. इसके लिए बोला है वो बिग डील नहीं है अपने को, बिकॉज ये रेडीमेड टूल्स है, रेडीमेड जार फाइल्स है, हम लोग को खाली एक्सेस करने का, दैट्स इट. बट कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है कि आपने किया कैसे, हाउ यू आर डूइंग इट, हाउ यू आर मेकिंग द इनहेरिटेंस, हाउ यू आर कॉलिंग द मेथड, हाउ यू आर कॉलिंग द वेरिएबल्स, दैट इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज डिजाइनिंग. यही तो इंपॉर्टेंट है और इसमें ही खेलने में मजा है. This is how we can have the interest into it. Okay, so I have already taken the time, right? So let's complete it. 1 second. So let me stop the recording as well, and then I will have the attendance. Now one student, please tell me that who is absent. I think 8